Like to start with my introduction. I am Dr. Anju Bala, Associate Professor in Commerce, Arya Girls College, Ambala, Kent. Today we are here to discuss income from other sources. We'll be doing part 1 of other sources, section 56 to section 58. So first of all, there is table of contents. We'll be doing income from other sources, meaning general incomes, section 56, subsection 1, specified incomes, dividends, income from letting of plant and machinery, furniture, building and machinery, winning from lottery, crossword puzzles, race winnings, gifts, deductions under section 57, then practical questions, and at last we'll be covering important questions. Income from other sources, meaning what do you mean by other sources? All the incomes which are not taxable in four heads is taxable under the head other sources. So it is the residual head of income. We know there are 5 heads of income. First head is salary. Assessee कौन हुआ? Employee. House property. Who is assessee? Owner of the house who receives the rent. Profit and gains from business and profession. assessee कौन है? Businessman. Capital gain. assessee कौन है? Seller of the asset who sells the asset. Other sources. सबसे important, other sources is the 5th head of income. And who is the assessee? Other sources में assessee है any person. Any person. कैसे? सैलरी किससे मिलती है? एम्प्लॉयर से. एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से क्या जो कुछ भी मिलता है वो कहां पर आएगा? अंडर द हेड अदर सोर्सेस. जैसे अगर एम्प्लॉय सैलरी रिसीव करता है, सैलरी में चार्जेबल होगा. लेकिन अगर वही एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट्स करता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डिपॉजिट करवाता है, लॉटरी विन करता है, तो दैट कम्स अंडर अदर सोर्सेस. तो एक सैलरीड पर्सन जो है वो अदर सोर्सेज में भी असेसी हो सकता है. हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, सेम हाउस को अगर हम लीज पे देते हैं, अदर सोर्सेज. सो दैट इज व्हाई अदर सोर्सेज में असेसी कौन है? एनी पर्सन. Because a person can be the salaried employee also, but he can earn the other incomes. So that particular incomes are covered under other sources. इसके बाद हम करेंगे characteristics. Incomes must be revenue in nature, may be received in cash or in kind, may be general incomes or specified incomes. All incomes are taxable on accrual basis or receipt basis, whichever is earlier. This is very very important point. पूरे टैक्स में इनकम्स टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस पर या रिसिप्ट बेसिस पर, दोनों में से जो पहले होता है, whichever is earlier. So income from other sources में हम क्या कवर करेंगे? जनरल इनकम्स अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, देन स्पेसिफाइड इनकम्स जिसमें आता है डिविडेंड, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग विद मशीनरी. बिल्डिंग अगर किराए पे देते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है. बिल्डिंग विद मशीनरी का अगर कंपोजिट रेंट होता है दैट कम्स अंडर अदर सोर्सेज. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस विनिंग्स, गिफ्ट्स. आज हम ये 5 पार्ट्स कवर करने वाले हैं. इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी विल बी कवर्ड इन पार्ट 2. देन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 ये हम कवर करेंगे, लेकिन अमाउंट नॉट डिडक्टेबल हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल इनकम्स. जैसे हमने कहा था, ऑल द इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल इन 4 हेड्स is taxable under other sources. Same is the case over here कि जनरल इनकम्स में कौन सी इनकम्स आएंगी? रेजिडुअल इनकम्स. वो इनकम्स जो चारों हेड्स में नहीं आती है वो किस हेड में आती है? अदर सोर्सेस में. जैसे हमें पता है कि सैलरी किससे मिलती है? एम्प्लॉयर से. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनीथिंग रिसीव फ्रॉम ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर टैक्सेबल. अगर हम देखें ये सारे के सारे पॉइंट सैलरी के रेजिडुअल है. Salary to MP MLA taxable, perks allowances exempted, honorarium less expenses, examination remuneration, the very important point, examination remuneration है, invigilation fees है, paper checking remuneration है. आपको ये पॉइंट याद रखना है. इसमें से we do not provide for any deduction. Sitting fees, sitting fees क्या होता है? Fees for conducting board meetings of other companies, taxable. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. जब हम सैलरी करते थे तो रिफंड फ्रॉम यूआरपीएफ जो था
हम कहते थे टैक्सेबल पोर्शन इज एडेड इन सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किस में आता था, सैलरी में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ जब रिफंड मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। डायरेक्टर्स फीस टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, बट डायरेक्टर्स सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर एक पर्सन एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह उसे डायरेक्टर सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में आएगा, लेकिन अगर डायरेक्टर्स फीस है दैट कम्स अंडर अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन क्या होता है, पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके फैमिली मेंबर्स को जो पेंशन मिलती है उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं, जिसमें से हम प्रेस्क्राइब्ड डिडक्शन है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम whichever is less. Then gratuity received by director who is not the employee of the company, amount received under Keyman insurance policy. Keyman insurance policy क्या है? This is the life insurance policy which is taken by employer. किसकी लाइफ पे ले सकता है वो, एम्प्लॉय की लाइफ पे लेता है। एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आता है। वो जो अपने नाम पर लेता है एम्प्लॉयर जो है, अगर अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो की पर्संस को दी जाती है। एम्प्लॉय के नाम पर ली, एम्प्लॉय को मैच्योरिटी अमाउंट मिला तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर सपोज अदर पर्संस को मिलता है तो अदर पर्सन कौन से हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एडवाइजर्स हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, उनको भी जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है that is taxable under the head income from other sources. Tips received by taxi drivers and waiters, that is also taxable under other sources. तो ये सारे पॉइंट्स सैलरी के रेजिडुअल थे, ये सारे पॉइंट्स एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर के अंडर आते थे। नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं हाउस प्रॉपर्टी के रेजिडुअल्स। कैसे हाउस प्रॉपर्टी किराए पे देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं, लैंड रेवेन्यू रिसीव करते हैं अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ground rent received taxable under other sources, rent received from plot of land other sources में taxable, lease rent received on house property या cinema house taxable. Now this point is very important, subletting क्या होता है कि अगर किराएदार घर आगे किराए पे देता है that is the case of subletting. अब सबलेटिंग में इनकम किसको हो रही है, किराएदार को हो रही है, इसलिए ये इनकम अदर सोर्सेज में आती है। हम करेंगे रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबटेनेंट, किराएदार का किराएदार, लेस रेंट पेड टू ऑनर बाय टेनेंट, लेस अदर एक्सपेंसेस बोर्न बाय टेनेंट। जो टैक्सेबल होगी इनकम वो सबलेटिंग की इनकम होगी जो अदर सोर्सेज में आएगी। एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल, रॉयल्टी less expenses, this point is also very important, other sources. Then deemed incomes, cash credits, undisclosed incomes, unexplained investments. इसके बाद आता है amount withdrawn from deposit in National Savings Scheme 1987 on which deduction under section 80 CCA has been provided. So all these incomes are taxable under the head other sources. इसके बाद अभी भी हम जनरल इनकम्स कर रहे हैं जिसमें आता है इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, एनएससी 9th इशू, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा कोई भी इंटरेस्ट होगा वो अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट लिखा है अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइवेट कंसर्न्स अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद नेशनल डिपॉजिट स्कीम अदर सोर्सेज, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन रिफंड अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स टैक्सेबल। देन हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटी अदर सोर्सेज। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ये सब हमारे किसमें आते हैं, अदर सोर्सेज में आते हैं। अगर हम बोले इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट, दैट आल्सो कम्स अंडर अदर सोर्सेज।
सिमिलरली आता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर अदर सोर्सेस। तो वो सारे इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में कवर नहीं होते हैं, दैट ऑल इज कवर्ड अंडर अदर सोर्सेस। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली, हमने बोला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दैट इज फुली टैक्सेबल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इफ बैंक इंटरेस्ट इज लेस देन इक्वल टू 10,000, नो TDS, fully taxable. But if bank interest is more than 10,000, TDS is done at the rate of 10%. What do you mean by that? अगर बैंक इंटरेस्ट लेस देन इक्वल टू 10,000 है, फुली टैक्सेबल ऑलवेज। अगर मोर देन 10,000 है, TDS इज डन एट द रेट ऑफ 10%। प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, अगर बैंक इंटरेस्ट मोर देन 10,000 है, क्या मोर देन 10,000? बैंक इंटरेस्ट। अगर मैंने सिंपल बैंक इंटरेस्ट लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखोगे कि बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट सेम है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट इज डिफरेंट, दैट इज फुली टैक्सेबल। ये बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन FD जो है ये दूसरे बैंक्स के ऊपर है, नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऊपर है। अगर बैंक इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है और नेट और रिसीव्ड भी लिखा है, नेट और रिसीव्ड इज रिटर्न, ग्रॉसिंग अप इज डन एट द रेट ऑफ 10%। ये पॉइंट हमें याद रखना है, हम अभी इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। बैंक इंटरेस्ट अगर लेस देन इक्वल टू 10,000 है, नो TDS, फुली टैक्सेबल। अगर बैंक इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है, नेट और रिसीव्ड इज रिटर्न, ओनली देन हम क्या करेंगे, ग्रॉसिंग अप इज डन। ग्रॉसिंग अप कब करनी है, when net or received is written. This point is very very important. Grossing up is done. अब इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि हमें, अगर हम कहते हैं नेट और रिसीव्ड इज रिटर्न, हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमने उसे बिफोर टैक्स बनाना है। रेट ऑफ ग्रॉसिंग अप क्या है, 10%। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म्स। If interest on deposit with firms is less than equal to 5,000, no TDS, fully taxable. If it is more than 5,000, TDS is done at the rate of 10%. इसका मतलब ये है, अगर वो more than 5,000 है और net or received is written, तो grossing up is done at the rate of 10%। यानी आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमने उसे क्या बनाना है, बिफोर टैक्स बनाना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। देखो, जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि बैंक इंटरेस्ट लिखा है, बैंक इंटरेस्ट 20,000 लिखा है। अब अगर हम कहते हैं कि बैंक इंटरेस्ट 20,000 इज रिटर्न, नेट भी नहीं लिखा, रिसीव्ड भी नहीं लिखा, तो हम उसे ग्रॉस मानते हैं, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब सेम, अब मैंने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो मैंने लिखा 12,500। अब अमाउंट भी लिमिटेशन अमाउंट से ज्यादा है, मतलब 10,000 से ज्यादा है, और रिसीव्ड वर्ड भी लिखा है, तो मुझे उसकी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है ग्रॉसिंग अप का, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। 90 क्या हुआ, 100 माइनस 10। तो हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे इस इंटरेस्ट की ग्रॉसिंग अप करनी है तो मैं क्या करूंगी, 12500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये होगा मेरा ग्रॉस ऑफ इंटरेस्ट। एक तो अमाउंट जो है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए, एंड सेकेंडली हम कहते हैं नेट और रिसीव्ड लिखा होगा, only then grossing up is done. अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म्स, एंड वी नो दैट डिपॉजिट विद फर्म्स का लिमिटेशन अमाउंट कितना है, 5,000, लेकिन हमने क्या लिखा, 5,400 लिखा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेट। अब नेट लिखा
तो दिस इज आफ्टर टैक्स। रेट ऑफ ग्रॉसिंग अप क्या है? 10%। रिमेंबर हमें लिमिटेशन अमाउंट का ध्यान रखना है। इसमें हमारा लिमिटेशन अमाउंट क्या था? 5000। इंटरेस्ट भी 5000 से ऊपर होना चाहिए, वो है। नेट और रिसीव्ड भी लिखा होना चाहिए, वो भी है। तो ग्रॉसिंग अप करेंगे, कैसे करेंगे? 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? 6000। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर सपोज मेरे पास बैंक इंटरेस्ट लिखा है, नेट भी लिखा है, तो और अमाउंट मेरे पास कितना है? 9000। तो दिस 9000 इज टैक्सेबल, क्योंकि हम ग्रॉसिंग अप तभी करेंगे अगर एक, नंबर 1 नेट और रिसीव्ड लिखा होगा, एंड नंबर 2 अमाउंट शुड बी मोर देन 10,000। बैंक इंटरेस्ट के केस में और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म्स के केस में ये जो अमाउंट है ये 5,000 से ऊपर होना चाहिए। एंड इन ऑल केसेस अगर सपोज मुझे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद फर्म, deposit with firms, if this is written interest on deposit with firms, this is 10,000, this is fully taxable, मुझे कोई ग्रॉसिंग अप नहीं करनी। क्यों? क्योंकि नेट और रिसीव नहीं लिखा, हमारा अमाउंट 5000 से ऊपर है, बट नेट एंड रिसीव्ड इज नॉट रिटन। अगर नेट और रिसीव लिखा होगा और अमाउंट भी हमारा सेड अमाउंट या लिमिटेशन अमाउंट से ज्यादा होगा, हम तभी उसकी ग्रॉसिंग अप करते हैं। These 2 points are very very important as this is the part of general incomes. Then आता है हमारा specified incomes. Specified incomes में हम क्या करने वाले हैं? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? शेयर्स पर मिलता है। तो सेम डेफिनेशन क्या है? डिविडेंड मीन्स द सम्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, whether out of taxable income or tax free incomes. Important point, dividend is assessable on accrual basis or receipt basis, whichever is earlier. अब डिविडेंड कितनी तरह का होता है? डिविडेंड 4 तरह का होता है। सबसे पहले हम करेंगे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। रीजन क्या है? टैक्सेस पेड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं, चाहे वो इक्विटी डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, ऑल डिविडेंड इज एग्जम्प्टेड। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो टैक्सेबल। अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी से एग्जम्प्टेड है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर डिविडेंड हम फॉरेन कंपनी से रिसीव करते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव करते हैं, तो 2 डिडक्शंस आएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस। नाउ deemed dividend, this point is very very important from theoretical point of view also. Deemed dividend क्या है? Deemed dividend means extraordinary benefits which is provided by company to its outstanding shareholders. अब तुम करोगे outstanding shareholders क्या होते हैं? अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें उसका 20% और मोर वोटिंग राइट होना चाहिए, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट होना चाहिए। ये तो कंडीशन है कि किनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी देती है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड। कैसे? लोन टू शेयर होल्डर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रीइंबर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू शेयर होल्डर्स। ये है हमारे फॉर्म्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड कि डीम्ड डिविडेंड किस प्रकार से दिया जा सकता है। रेट, एक्चुअल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हिचएवर इज लेस। जब भी हमें डीम्ड डिविडेंड निकालना है तो हमें इनमें से कोई अमाउंट भी दिया होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी दिए होंगे, व्हिचएवर इज लेस इज डीम्ड डिविडेंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो डिडक्शन इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ डीम्ड डिविडेंड। हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें लिखा लोन टू शेयर होल्डर्स, लोन टू शेयर होल्डर्स, हम कहते हैं लोन टू शेयर होल्डर्स आया 20,000। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे टोटल प्रॉफिट दिए कितने? 2 लाख। दोनों में से जो कम है वो हमारा क्या होगा?
डीम्ड डिविडेंड। तो डीम्ड डिविडेंड मेरा कितना होगा, 20,000 इज आर डीम्ड डिविडेंड। सो डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या है कि कंपनी अपने अच्छे अच्छे शेयर होल्डर्स को एक एडिशनल फैसिलिटी देती है। तो वो एडिशनल फैसिलिटी के लिए हमारी लिमिट क्या है, एक्चुअल अमाउंट और accumulated profits, whichever is less, that becomes deemed dividend. नेक्स्ट स्पेसिफाइड इनकम्स में आता है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग विद मशीनरी, ये दिया होगा। इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, डिफरेंस इज टैक्सेबल। देन आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी गेम शोज, गैम्बलिंग, बेटिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज, इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 10,000 नो टीडीएस, फुली टैक्सेबल। इफ इट इज मोर देन 10,000 टीडीएस इज डन एट द रेट ऑफ 30%। मतलब अगर नेट और, सेम रूल होगा कि अगर नेट और रिसीव्ड लिखा है देन ग्रॉसिंग अप इज डन एट द रेट ऑफ 30%। बट हम ग्रॉसिंग अप तभी करेंगे अगर नेट और रिसीव लिखा होगा। अब हम रेस विनिंग्स पे आते हैं। इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 5,000 नो टीडीएस, फुली टैक्सेबल। अगर 5,000 से ऊपर है, नेट और रिसीव्ड इज रिटन, ग्रॉसिंग अप इज डन एट द रेट ऑफ 30%। लॉटरी में से हम कोई डिडक्शन नहीं देते, लेकिन हॉर्स रेसेस में से हम एक डिडक्शन देते हैं, विच इज एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस। देन आता है गिफ्ट्स, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, हम गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स का एग्जांपल करने वाले हैं, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ये एक फैमिली हो गई। अब रिलेटिव्स कौन है, हस्बैंड के पेरेंट्स, हस्बैंड के ब्रदर एंड सिस्टर, वाइफ के पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अब पेरेंट्स के आगे ब्रदर एंड सिस्टर। सो इस कैटेगरी तक आप रिलेशनशिप लेकर जाओगे, ये तीनों कनेक्टेड है। अगर लिखा कि चिल्ड्रन के लिए, ये जो वाइफ लिखा है वो कौन हो गई, मदर, मदर्स ब्रदर, नो डाउट इनकी वाइफ जो है इसके साथ इनकी स्पाउस इंक्लूडेड है, ये ब्रदर एंड सिस्टर प्लस स्पाउस, लेकिन उनके बच्चे इंक्लूडेड नहीं है, means cousins, uncle, they are not included under the category of relatives plus spouse. ब्रदर की स्पाउस उसकी वाइफ, सिस्टर की स्पाउस उसका हस्बैंड। तो जैसे हम लोग ये करते हैं कि अब वाइफ के लिए हस्बैंड्स मदर, हस्बैंड्स मदर्स सिस्टर या फादर्स ब्रदर, तो इस तरह से हमने इस कैटेगरी को इंक्लूड करके हमने ये रिलेटिव्स होते हैं। तो रिलेटिव्स में इस चेन को हमेशा याद रखना है, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, हस्बैंड के पेरेंट्स, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं, देन ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट्स के आगे ब्रदर सिस्टर। सेम इज द केस विद वाइफ, वाइफ के पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के आगे ब्रदर सिस्टर। नो डाउट स्पाउसेस आर आल्सो इंक्लूडेड, लेकिन उनके सिबलिंग्स आगे इंक्लूडेड नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स exempted, gift on marriage exempted, gift on inheritance, वसीयत में अगर कोई गिफ्ट देके जाता है exempted, gift on contemplation of death, यानी अगर डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो मुआवजे के फॉर्म में जो कुछ भी मिलता है, that is also exempted. Then आता है gift from friends and non-relatives, if it is less than equal to 50,000 exempted, more than 50,000 full aggregate amount is taxable. पहले लोग क्या करते थे, इनिशियली जब रूल आया तो 50,000, तो जो फ्रेंड से 49 49 49 करके बहुत टैक्स बचाया, सिर्फ एक साल ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा फुल एग्रीगेट अमाउंट, ए ने गिफ्ट दिया 50,000 का, 30,000 का चलो करते हैं, और बी ने गिफ्ट दिया 20,000 का, सी ने गिफ्ट दिया 40,000 का। तो तीनों का एग्रीगेट अगर हमारा 50,000 से ज्यादा आता है तो दिस 90,000 इज टैक्सेबल। लेकिन अगर तीनों का जो टोटल है वो 50,000 या उससे कम होता, दैट वाज एग्जैम्प्टेड। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिफ्ट से रिलेटेड। अब हम करेंगे डिडक्शंस।
दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। एक सिंपल सा रूल है अदर सोर्सेज में, रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो डिडक्शन की तरह दिया जाता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा एनी एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में जो भी इनकम है रिलेटेड एक्सपेंसेस डिडक्शन में आता है। बट याद रखना है जो हमने जनरल इनकम्स में बोला था, एग्जामिनेशन रेम्यूनरेशन में से डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट प्रोवाइडेड। फैमिली पेंशन में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, चाहे वो डिविडेंड हमारा फॉरेन कंपनी का हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, ये डिडक्शन हमें डिविडेंड में से भी देनी है, इंटरेस्ट में से भी देनी है, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी में से नो डिडक्शन इज प्रोवाइडेड। No deduction is provided for any expenditure out of casual incomes, lottery, crossword puzzles, race winnings, लेकिन race winnings में से हमने एक deduction देनी है, that is expenses on maintenance of horses. No deduction is provided out of dividend from Indian company. So these points has to be remembered before doing the practical questions. आज हमने किए हैं general incomes. जनरल इनकम्स कौन सी है? रेजिडुअल इनकम्स। देन वी डिड डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जैम्प्टेड, नो डिडक्शन। फॉरेन कंपनी टैक्सेबल, कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल, दो डिडक्शंस आएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस। देन वी डिड इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग विद मशीनरी, फर्नीचर, लेस एक्सपेंसेस। रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे वो इनकम बन जाता है। देन हमने करा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर वो less than equal to 10,000 and no TDS, fully taxable. More than 10,000, net or received is written, grossing up is done at the rate of 30%. Race winnings, अगर less than equal to 5,000 and no TDS, fully taxable. But more than 5,000 है, net and received is written, grossing up is done at the rate of 30%. इसके बाद हमने गिफ्ट्स किया, रिलेटिव से एग्जाम्प्टेड, मैरिज पे एग्जाम्प्टेड, इनहेरिटेंस एग्जाम्प्टेड, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एग्जाम्प्टेड। लेकिन अगर गिफ्ट हम रिसीव करते हैं फ्रेंड्स एंड नॉन रिलेटिव से लेस देन इक्वल टू 50,000 एग्जाम्प्टेड, मोर देन 50,000 फुल एग्रीगेट अमाउंट इज टैक्सेबल। तो आज हमने जनरल इनकम्स कवर की है और 5 स्पेसिफाइड इनकम्स कवर की हैं, उसके बाद डिडक्शंस। So now we are doing the practical questions, जितना पार्ट हमने आज other sources practical का किया है। This is a question, family pension from employer। जब हमने कहा family pension from employer, तो इसकी accessibility कैसे करेंगे? Family pension less 1/3 of pension और 15,000 whichever is less। अगर हम 42,000 का 1/3 करते हैं that is 14,000 और 15,000 whichever is less, तो बाहर कितना अमाउंट आएगा? 28,000। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। He has written a book for college on which he has received royalty of 20,000 from publisher. He has spent 5,000 on books, stationery, typing, etc. रॉयल्टी में से हमेशा हम रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 20,000 माइनस 5,000, 15,000 टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एज एग्जामिनर 2,000, he incurred 75 on postage। this 75 जो है that is not considered, क्योंकि ये हमारा एग्जामिनेशन रेम्यूनरेशन है, fully taxable। then आता है हमारा cash worth 10,000 was found in previous year, source of which couldn't be explained by him, unexplained incomes। तो unexplained incomes हमारी fully taxable। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट लॉटरी रिसीव्ड, एक तो रिसीव्ड वर्ड लिखा, अमाउंट भी 10,000 से ज्यादा है, आगे एक्सपेंसेस लिखा है फॉर परचेजिंग लॉटरी टिकट्स, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड। तो हम क्या करेंगे? लॉटरी का क्योंकि अमाउंट 10,000 से ज्यादा था, तो हम क्या करेंगे लॉटरी के केस में? 24, यहां ये करेक्शन कर लेना आप, 100/70 है, यानी 24,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। तो ये लॉटरी का अमाउंट क्रॉसिंग अप के बाद कितना आएगा? 35,000। लॉटरी से रिलेटेड मैं दोबारा से लिख रही हूं, 24,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, तो ये कितना आएगा? 35,000 विच इज टैक्सेबल। सो द टोटल कम्स आउट टू बी 1,80,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने ये लिखा, दिस इज अ क्वेश्चन,
सैलरी फॉर एमपी, ये तो टैक्सेबल होता है, लेकिन डेली अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड। सेम इज द केस हियर, हमने 70,000 को टैक्सेबल करा है और डेली अलाउंस को एग्जेम्प्टेड किया है। नेक्स्ट आता है, हिज रेजिडेंशियल हाउस हैज बीन टेकन ऑन रेंट, हाफ ऑफ विच हैज बीन सबलेट। तो ये सबलेटिंग की इनकम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबटेनेंट 1200 इंटू 12, हाफ रेंट पेड बाय टेनेंट यानी 12,000 का 1/2, क्योंकि उसने आधा किराए पे दिया था। तो 6,000 इज डिडक्टेड, 8,400 कम्स आउटसाइड। देन आता है ग्राउंड रेंट, फुल्ली टैक्सेबल, ग्राउंड रेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद हमने करा दिस इज टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन he took a loan of 10,000 and purchased shares, that is not considered at all, क्योंकि डिविडेंड एग्जेम्प्टेड है, तो इस करके हम उससे रिलेटेड कोई भी डिडक्शन जो है वो हम नहीं लेते हैं। सो हमने प्रैक्टिकल में भी ऐसे करा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, वी डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी डिडक्शन। अब आया लॉटरी। अब लॉटरी लिखा है, अमाउंट तो 10,000 से ज्यादा है, लेकिन नेट रिसीप्ट कुछ नहीं दे रखा, दैट इज ट्रीटेड एज ग्रॉस। तो हमने जो लॉटरी का अमाउंट है दैट इज बीन टेकन एज इट इज। अब हम आते हैं बैंक इंटरेस्ट नेट, नेट भी लिखा और अमाउंट भी हमारा 10,000 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्रॉसिंग अप करेंगे। 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, दैट कम्स आउट टू बी 30,000। टोटल किया तो टोटल इज 163400। नेक्स्ट आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज इसके साथ ही दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जिसमें हम जनरल इनकम्स और स्पेसिफाइड इनकम्स सभी को इंक्लूड करेंगे। इनकम फ्रॉम लॉटरी, सबलेटिंग एंड डीम्ड डिविडेंड, फैमिली पेंशन, ये हमें शॉर्ट नोट्स में आता है। शॉर्ट नोट्स हमें 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। देन एक्सप्लेन द डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंडिविजुअली ये 5 मार्क्स का आता है, बट इट मे कम विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज all about income from other sources in part 1. Thank you so much.